Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students. How are you? I hope you will be fine. Okay students, now all of you will open your books of English. In this lecture, today we will complete the exercise of lesson number 2, Surrounded by Trash. Now open your page number 15. Okay students, at page number 15 there is question text patterns. It is about the reading. द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज़, हमने कल जो रीडिंग की थी उसमें जो मेन आइडिया था रीडिंग के बारे में, वो रीडिंग का वो किस चीज़ के बारे में था. इट वॉज अबाउट ट्रैश, रिसाइकलिंग और एनवायरनमेंट. द करेक्ट आंसर इज़ ट्रैश, सो टिक द करेक्ट आंसर ट्रैश. कम टू नेक्स्ट पेज. एट नेक्स्ट पेज देर इज़ क्वेश्चन रीड पैराग्राफ 2 ऑफ द लेसन एंड फाइंड हाउ द राइटर स्पोर्ट्स द मेन आइडिया. इसमें हमने पैराग्राफ नंबर 2 को दोबारा से रीड करना है और हमने देखना है कि राइटर जो है वो ट्रैश के बारे में जो बताता है तो वो उसका जो आइडिया है वो किस चीज़ से उसको डिफ़ाइन करता है. डेफिनेशन के ज़रिए से, एविडेंस से या एग्जाम्पल से. सो वी फाइंड इन पैराग्राफ नंबर 2 दैट द राइटर supports the main idea of the trash by giving its evidence. So tick the correct answer, evidence. Question number B is based on activity, and question number C is question answer. It will be noted down on notebook. Okay, come to the next topic, grammar. The topic of the grammar is countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns are the names of things, people, etc. which we can count. For example, books, sister, horse. Countable nouns, students, countable nouns वो nouns होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसा कि बुक्स, सिस्टर, हॉर्स, पेंसिल, कप्स वगैरह. And uncountable nouns are those names of things which we cannot count. For example, milk, oil, sugar, etc. Uncountable nouns वो नाउन होते हैं, uncountable nouns का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनको हम ना गिन सकें. For example, मिल्क को हम नहीं गिन सकते. Oil, sugar, they cannot be counted. Come to next page. Okay students, at this page there is a puzzle and we have to complete the puzzle with the given clues. All there are sentences 1 to 10. These are puzzles, these are clues, and we have to solve these puzzles. First letter of each answer is given here, so we will read one. Bees collect it. What is this? So think about it and try to find out the answer. By reading the word of bees, first thing come in your mind, that is honey, and the first letter of honey is also written here, so the answer is honey. All of you will write down it on your reading book. We use it, number 2 is we use it to make bread. ब्रेड बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्लावर, मतलब आटा. दिस फ्रूट कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब ये कौन सा फ्रूट है जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे रहते हैं, डॉक्टर के पास हम नहीं जाते. ठीक है, हम सेहतमंद रहते हैं. एप्पल, APPLE, एप्पल. द करेक्ट आंसर इज़ एप्पल. वी ड्रिंक टी इन दैम. कप्स, वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी. वाटर, वी यूज़ दैम टू राइट विथ. पेन्स, वी यूज़ इट टू मेक स्वीट्स. शुगर, वी रीड दैम. बुक्स, चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच, यानी बच्चे जो हैं वो साहल पर इससे खेलते हैं. दैट इज़ सैंड, मतलब रेत. इट टेल्स अस द टाइम, टाइम के बारे में हमें क्या चीज़ बताती है? क्लॉक. सो वी हैव रिटन ऑल दीज वर्ड्स. ऑल दीज आंसर्स आर नाउन and there is a mixture of countable and uncountable nouns, so we have to separate all the countable and uncountable nouns, and we will write it in their separate boxes. First noun is honey. Honey is uncountable noun, so you will write it in this box of uncountable nouns. Second is flower.
Flower is also uncountable noun, so we will write it here. Third is apple. Apple is countable noun, so apple will be written in countable nouns box. So you will write all the countable and uncountable nouns in these boxes. Okay students, now come to next page. Okay students, at this page there are fill in the blanks a or an where necessary. A or an are articles and a or an are called indefinite articles. So we have to know what are indefinite articles. A and an are called indefinite articles. They are used before singular countable nouns. For example, a man, an angel. We do not use a or an before uncountable nouns. And okay students, it means that we will use a or an before singular countable nouns. एक सिंगल चीज़ और जिसको हम गिन सकते हैं सिर्फ उसके साथ हम ए और एन लगाएंगे. ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन जो है वो वोवल साउंड से पहले हम यूज़ करेंगे. A student is singular, so we will write here a. Food is uncountable noun, so a or an will not be used here. Paper is singular, a will be used. Ink pot, ink. You can see that there is a vowel sound, so we will use here an. Boy singular, so we will use a. Apple is giving us a vowel sound, so we will use here an. Okay students, next question is about adverbs of frequency. What is an adverb? Adverb is a part of speech and it is used with to help the verb to add the meaning of a verb. Okay, adverbs of frequency show how often an action is done. Adverb of frequency, ये एडवर्ब की आगे मज़ीद जो है वो इसके टाइप है और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें ये बताती है कि कोई काम जो है वो कितना किया जाता है, कितना अक्सर औकात या कैसे कितना किया जाता है. ठीक है, इसमें हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में वी हैव नेवर मीन कि जो काम हम कभी भी नहीं करते. समटाइम्स जो होता है वो बाज़ औकात. ऑफन अक्सर, मतलब समटाइम्स से जो थोड़ा ज़्यादा करते हैं. एंड यूजली एंड देन ऑलवेज मीन जो काम हम हमेशा करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देर आर सम सेंटेंसेस. आपने इन सेंटेंसेस को रीड करना है और रीड करके आपने अपने अकॉर्डिंग, अगर आप फॉर एग्जांपल आई कीप अ प्लास्टिक बैग विद मी टू अवॉइड लिटरिंग. अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं कि आप लिटरिंग से बचने के लिए एक प्लास्टिक बैग अपने पास रखते हैं, यू विल टिक इन ऑलवेज. अगर आप कभी कभी करते हैं यूजली में, अगर आप अक्सर करते हैं तो ऑफन में, समटाइम्स मतलब बहुत थोड़ा करते हैं तो समटाइम्स में, और अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते तो फिर आप इस नेवर में टिक लगाएंगे. ठीक है, ये सारे जो टिक हैं, ये सारे जो 1 to 5 सेंटेंसेस हैं, ये आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द आंसर फ्रॉम 1 to 5 you will count your score. and how to count the score? सबसे पहले आपने देखना है कि ऑलवेज में आपके कितने टिक हैं, 1 2. यहाँ पे इस पेज पे आपने देखना है कि ऑलवेज का कितना स्कोर है, 2, और आपके टिक कितने हैं, 2. 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 and 2 आर 4. तो यहाँ पे आपका हो गया आंसर ऑलवेज का 4. यूजली में आपका 1 टिक है, तो यूजली का स्कोर जो है वो 1 है. नेवर में आपका कितना स्कोर है, नेवर में आपको कोई भी टिक नहीं है, इसलिए आपका 0 स्कोर है वहाँ पे. तो अब हमने यहाँ पे हमारा ऑलवेज का था 4 एंड यूजली का था 1. 4 and 1 कितने हो गए, हमारा स्कोर हो गया 5. तो 5 जब हमने अपना आंसर देखा है, अब हमने देखना है कि हमारा आंसर नेवर में आ रहा है, यूजली में आ रहा है या ऑलवेज में आ रहा है. तो मैंने देखा है मेरा जो आंसर है दैट इज़ कमिंग इन द यूजली 5. ठीक है, तो इट मीन्स कि यू आर मोटिवेटेड बट यू शुड, मतलब हमें थोड़ा लिटरिंग को फैलाने में, इसका जो फैलाव है उसको कम करने में अभी
मैंने और मोटिवेट होना है, ठीक है। ट्राई हार्डर मतलब अभी मुझे और ज़्यादा सख्त कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट topic, that is simple present tense. Simple present tense describes general statements or acts that are habitual. We also use simple present tense whenever we talk about our habits or daily routines. We use base form of verb. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जिसमें हम अपनी रोज़मर्रा के कामों के बारे में बताया जाता है या डेली कामों के बारे में बताया जाता है, और उसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी सी हेयर इज़ अ पैटर्न ऑफ टेंसेस, आई डू, मतलब आई डू मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, मैं ये काम करती हूँ या करता हूँ। अगर हम इसको पास्ट में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आई डिड, मतलब मैंने काम किया। अगर हम इसको फ्यूचर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आई विल डू, मतलब मैं काम करूँगा। दिस इज़ पास्ट, दिस इज़ फ्यूचर, एंड आवर टॉपिक इज़ हेयर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ यू विल अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने इन सेंटेंसेस में 1 to 4 सेंटेंसेस में अंडरलाइन करना है। एज यू कैन सी हेयर, आई हैव अंडरलाइंड ऑल द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब in these sentences: come, go, leave, think, keep, create, emit. Okay, next part G is take the right option. यहाँ पे हमारे जो सिंगुलर हैं उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और यस लगाएंगे, और प्लूरल के साथ हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करेंगे। जैसा कि दे नेवर डैश टू सी एस, दे जो है अब यहाँ पे क्या है, दे है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी कम। आई इज़ आल्सो काउंटेड इन प्लूरल फॉर्म, सो आई के साथ क्या आएगा, क्लीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस ट्रेन हेयर इज सिंगुलर, तो ट्रेन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा करेंगे। अराइव्स, दिस ट्रेन ऑफन अराइव्स लेट। आवर टीम नेवर डैश, अब टीम जो है ये यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस विल बी एडिड, सो हेयर आवर टीम नेवर लूजेस। सलमा नेवर, सलमा इज आल्सो सिंगुलर नाउन, सो सलमा नेवर विजिट्स द लाइब्रेरी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ lesson number 2, surrounded by trash. All of you will also solve this exercise on your reading book. Write your work neat. Okay, stay blessed. Allah Hafiz.